अब जो हम लोग डिस्कशन पढ़ने वाले हैं उसमें ये कह रहा हॉर्टिकल्चर सर्विसेज, तो दिस पर्सन एनी पर्सन is selling plant to municipality or local authority whether it will be exempt or not। और ये गार्डन मेंटेनेंस का काम कर रहा है, पार्क मेंटेनेंस का काम कर रहा है, तो क्या ये एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल? Welcome to Tax by KK. Join our channel to master 250 hours of GST at rupees 199 per month. क्या है वो? No much changes in this new bill. I saw one comparison also. हाँ हाँ It looks like, especially that political contribution, political donation, everything they have kept it as it is. हाँ, डिडक्शन भी पड़ा हुआ है, एग्जामिशन भी पड़ा हुआ है, तो उन्होंने चेंज sir. क्या किया? ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल। New one, correct. कुछ भी चेंज नहीं किया, सब कुछ वही वही। थोड़ा बहुत माइक्रो चेंजेस भले किया हो जो अभी पढ़ नहीं पाए हैं, मैक्रो में तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। All chartered accountants are happy because they have not changed the definition of accountant. हाँ, दैट इज द सेविंग ग्रेस आई थिंक। नहीं, वो होना भी नहीं चाहिए था। सीए आर वेल इक्विप्ड। There were huge pressure from CW and institute also to add their. The kind of syllabus you have of accounting standard, none of the other two institutes do not have it. Ah, yes, sir. True. Auditing standards, what you have, the other two they do not have it, so they don't have a chance for that. चलिए फिर हम लोग को अच्छा इनकम टैक्स भी करना है, तो विल फाइंड अ टाइम, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा, लेकिन ये वही का वही है, तो सिर्फ एक तरह से रिवीजन वाला होगा, और कहीं कहीं माइक्रो चेंजेस हुआ तो वो हम लोग पढ़ देंगे फटाफट। तो मैं एक एक चैप्टर करके बनाता जाऊंगा, उसको बता देंगे, ताकि एक हम लोग को एक बेस मिल जाए, फिर उसके ऊपर आप लोग वर्क कर पाए। सो लेट अस स्टार्ट 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग। ये हम लोग को करना है, लेकिन इससे पहले देखिए, suppose Reliance Industry Limited gives a grant to an NGO to do some research and development work. Whether this grant or donation is subject to GST. Let me repeat this. Reliance Industry Limited gives grant or donation to NGO for research and development, or IIT or any other research and development institution to do an R&D. Whether this donation is subject to GST. कोई बताइए, प्लीज बताइए, इसमें लगेगा या नहीं लगेगा, कैसे बताए सोचेंगे आप लोग, बताइए। सर, अगर ब्लैंकेट ग्रांट है तो नहीं लगेगा, पर अगर रिलायंस इंडस्ट्री को कुछ मिलता है, सामने बेनिफिट होता है, तो हो सकता है टैक्स। मतलब क्विड प्रो क्यो, है ना? यस। तो ये सेक्शन 7 के सप्लाई के डेफिनेशन में जो लिखा हुआ सप्लाई इंक्लूड समथिंग समथिंग समथिंग, तो इट मींस देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि अगर कंसिडरेशन जा रहा है तो वहां से भी कुछ फ्लो होना चाहिए। अगर यहां से कुछ फ्लो नहीं हो रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज देयर इज नो क्विड प्रो क्यो। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ इसी को डिस्कस किया हुआ है कि ये ग्रांट के ऊपर जीएसटी लगाए या नहीं लगाए, इवन इफ देयर इज ए क्विड प्रो क्यो। अगर क्विड प्रो क्यो नहीं है तब तो लग ही नहीं रहा है, लेकिन अगर क्विड प्रो क्यो होने के बावजूद इसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट करे या ना करे। लेट अस read it. The secretary clarified that if there is a quid pro quo in case of a private entity, the transaction is taxed. He explained that many institutions, both in the private and public sectors, might conduct research for. मैं एक बार दोबारा पढ़ता हूँ. If there is a quid pro quo in case of a private entity, the transaction is taxed. Quid pro quo है तो transaction को tax होना, section 7 के supply के definition को वो satisfy करता है. He explained that many institutions, both in private and public sector, might conduct research for companies that could lead to improvements in technology. For example, a company enhancing the functionality or capacity of its car engine. In such cases, the company may provide a grant or fee in return for the intellectual property rights or copyrights to use the technology for commercial purpose. Similarly, an agricultural company might provide a grant to develop a better seed, which would also be taxed because it involves a service provided in return. Whereas if research grant is given for purely philanthropic purposes, such as developing a medicine with no intention of commercial exploitation, it should not be taxed. So, ये important. He pointed out that global practice generally exempts research for the public good. In the officers' meeting, it was decided to deliberate on how to address these issues, particularly the issue of distinguishing research for public benefit from research for commercial exploitation. तो ऐसा रिसर्च जो जनरल पब्लिक
के बेनिफिट के लिए तो उसको एग्जाम करेंगे, वरना प्राइवेट है तो टैक्स करेंगे। लेकिन देखते हैं क्या डिस्कस कर रहे हैं। Assam supported the exemption, noting that making research taxable under GST would significantly increase cost, potentially discouraging research and development in areas such as education and agriculture. It was also stated that exempting research under GST, consistent with the provisions in the Income Tax Act, would increase scientific research and development. Income Tax Act का कौन सा सेक्शन में है exemption या donation to? Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. Research, donation for research. Anyone? No, I think 35 है sir. 35 है, ठीक है. It was further emphasized that exempting research from GST would send a positive message to society about the government's commitment to education, research and development of scientific temper. Whereas if research were made taxable under GST, it would become expensive and potentially discourage research and development in development scenario in India. तो डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, एक तो सेक्शन 35 है अगर वो बिजनेस कर रहा है, अदर देन बिजनेस वाले भी अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते हैं तो उनको सेक्शन 80 GG A B C में कोई एक है। तो ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम मेघालय स्टेटेड दैट द डिसीजन ऑन टैक्सेबिलिटी should fundamentally depend on the end use of the research. अब देखिए अगर ये end use के ऊपर डिपेंड करेगा टैक्सेबिलिटी, तो ये end use सर्टिफिकेट मांगेंगे, अगेन चीजें कॉम्प्लेक्स होगी। They suggested that where everyone is allowed to use the outcome of research, it should be non-taxable, yani public good. However, if the research results in patent held by an entity that controls its use, this should be treated differently. He proposed that research for public use is perhaps the only justifiable way to grant a tax exemption. They also expressed concern that organizations might misuse this exemption by creating a proxy entities to fund and benefit from research through indirect channels. Hence, it is crucial to ensure transparency and openness in research to truly benefit the larger public. The committee should thoroughly examine these aspects and make decisions that would foster positive research development for the greater good of the country. The grants given by the government to government entities or the institutions notified under Section 35 of the Income Tax Act are exempt from GST. इसमें IIT, national universities ये सारे notified हैं, are exempt from GST. This exemption applies whether the research is for pure public good or otherwise. Second, pure research conducted for the larger public good if funded by the government is exempt from GST. तो ये already exempt है, मैं आपको दिखलाता हूँ कौन से serial number. ये serial number 46A they inserted. Research and development services against consideration received in the form of grants supplied by government entity. तो government entity अगर research का पैसा दे रही है तो exempt है, और research association, university, college or other this under section 35 की समझ में नहीं आया. R&D services against consideration received in the form of grants supplied by government entity. किस के अलावा और कहाँ डिस्कस हुआ है? किसके अलावा ये 54 में डिस्कस हो रहा है. ओके कौन सा चैप्टर नंबर 46? एक मिनट प्लीज, आप लोगों के साथ में किताब लिख भी लूंगा. अच्छा हमने यहाँ लिख, ठीक है. तो सीरियल नंबर 46A, ग्रांट्स फॉर क्विड प्रो क्यो इज एग्जम्प्ट इन सीरियल नंबर 46A टू 10 अक्टूबर 2024 से effective. वापस आते हैं. Sir, whether it means before that 2024 it was taxable? Yes, क्विड All grants. ऑल टाइप्स ऑफ ग्रांट. गवर्नमेंट वाला ग्रांट एग्जेम्प्ट था, मुझे याद आ रहा है कहीं इसके 46A के अलावा और भी कहीं लिखा हुआ है. रुकिए. नहीं सर, गवर्नमेंट ग्रांट भी एग्जाम्प्ट नहीं था सर अर्लियर. अच्छा एक बार देख लेते हैं, मुझे याद क्यों आ रहा है, ऐसे नहीं मिलेगा. R&D ग्रांट 46A तो हमने देख ही लिया. एफिलिएशन, अच्छा गवर्नमेंट ग्रांट का भी नहीं है. गवर्नमेंट ग्रांट का भी एग्जाम्पशन नहीं रहता है सर, मगर इफ इट गिव्स ओनली 18 लाख ग्रांट टू R&D यूनिट, देन इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड we never used to pay that. किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं आप? We have one R&D unit, R&D research and development client sir. अच्छा उसमें क्या होता है? He used to receive a lesser than 20 lakh rupees grant in a year. ओके, तो वो उस सेक्शन 22 के कारण टैक्सेबिलिटी नहीं आती थी. हाँ.
ओके अब 46 ए के आने के बाद अभी this some like Tata and all are putting condition that GST has to be paid. They are releasing GST only against the proof of payment. ओके तो मतलब दे आर नॉट लेकिन ये एग्जाम्पशन जो रूल 40 सीरियल नंबर 46 ए का है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कौन किसको पैसा दे रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज अगेंस्ट कंसिडरेशन Sir, usually क्या होता है sir? They will be encouraging some part events will be there. If they win in that they will give some grants. ओके That money has to be utilized for the some this purposes like research. नहीं तो हु इज गिविंग लाइक हियर गवर्नमेंट एंटिटी इज गिविंग द ग्रांट Government itself is giving sir. Government has set up incubation centers and SBI RI बोल के है sir एक small scale some research development something like that is there. उस पे पैसा मिलता है सर. और ये जो रिसर्च एसोसिएशन नहीं पैसा यहाँ कौन दे रहा है रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट सप्लाइड बाय Government is giving to entities which are doing R&D sir, which are doing like research for malaria medicine and all. सर मेरे हिसाब से ये इसमें कंसिडरेशन इज रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन बट सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंटिटी ए और रिसर्च एंड जो नीचे है ना रिसर्च एसोसिएशन यूनिवर्सिटी कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन हाँ मतलब ए और बी सर्विस प्रोवाइडर है ये केस अच्छा ये Sir, usually, प्रोवाइडर है यस sir, usually what happens in colleges will have incubation centers. These all the companies will go and set up a unit there in incubation center. नहीं वो ठीक है लेकिन दिस गवर्नमेंट एंटिटी एंड R&D दीज आर सर्विस ये लोग R&D कर रहे हैं करेक्ट हाँ यस कर रहे हैं तो ग्रांट किसी से भी मिले यस फ्रॉम एनी पर्सन ग्रांट किसी से मिले R&D ये करेंगे प्रोवाइडेड दिस ओके ठीक है अब देखते हैं क्या इन्होंने So you mean to say for private players it is not exempt? नो इट इज एग्जाम्प्ट एनीवन कैन गिव द ग्रांट इसको पढ़िए ना अरविंद जी क्या लिखा हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज अगेंस्ट कंसिडरेशन सॉरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज सप्लाइड बाय यूं पढ़ Okay, okay. ये लोग अगर रिसर्च कर रहे हैं तो आपको एग्जाम्पशन है ग्रांट कोई भी दे Okay, और इसमें एंड यूज के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है okay. The honorable chairman asserted that research, whether it involves government to government, government to private, or private funding, should be treated favorably. She acknowledged that sometimes state and central GST authorities issues notices to verify the nature of research funding to ensure compliance with the law. These notices are not intended to harass but to verify the compliance. अब देख लीजिए मान भी ली है. She noted that recent notices were issued to 7 institutions, including both government and private entities, to investigate whether the funding was compliant with the existing regulation. न्यूज़पेपर में बहुत आया था IIT और 7 इंस्टीट्यूशन है उसमें IIT वगैरह को नोटिस भेज दिया था कि आपने ग्रांट के ऊपर GST नहीं दिया है. The honorable member from Mizoram highlighted that when universities receive research funding from companies, it is often categorized as consultancy fee. According to the UGC Working Committee 2019 on According to the UGC Working Committee on University Industry Engagements, a portion typically 10 to 50% of this consultancy fee is allocated to the university. He urged the council to consider this aspect when the fitment committee reviews the matter, pointing out the challenges faced in the academic research. He noted that research often follows its own hypothesis, making it difficult to predict outcomes such as patents, which can take many years to materialize. This delay poses a challenge for paying GST as the grantor might have already disbursed the funds and the patent could be granted years later. He expressed satisfaction that the council is moving towards a conclusion where GST may not be applicable. ये एक वैलिड भी पॉइंट है. मान लीजिए मैंने रिसर्च करने के लिए आपको पैसे दिए आज, रिसर्च में टाइम लगेगा 5 साल बाद पेटेंट होगा, देन आई विल बी गोइंग फॉर कमर्शियल यूज. तो टैक्सेबिलिटी कब आनी चाहिए? जब मैं पैसे दे रहा हूं या जब मुझे क्विड प्रो को क्यों मतलब कब इसकी टैक्सेबिलिटी आएगी? 5 साल बाद आएगी या पहले ही आ जाएगी? क्या लगता है आपको? Sir, one more situation. Many times those research will not succeed also. हाँ, those research won't succeed also. That is a valid point. तो लेकिन again breach of contract, liquidated damage तो काफी ज्यादा इसमें प्रॉब्लम तो था ही
कि कैसे टैक्स करें, एडवांस समझ के टैक्स कर सकते थे। द ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम बिहार एक्सप्रेस प्राइवेट इसको छोड़ देते हैं। स्टेटेड इफ द फंडिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट और पेटेंट क्रिएशन दैट नीड्स टू बी केयरफुली एग्जामिन्ड बाय द फिटमेंट कमिटी। उत्तराखंड सपोर्टेड मेघालय suggestion that research institutions should provide an undertaking affirming that the outcomes of their research, whether it be a study, patent, or any other, will be made public. Additionally, he proposed that if the undertaking is not complied with, GST should be levied. Telangana emphasized the importance of research for the country and suggested that funding from the government, whether from the center or the state, to institutions should be exempted from taxation. If the research serves a public purpose, even if it involves quid pro quo, it should still be exempted since the funds are coming from the government. He proposed that private institutions funding research for public purpose should also be exempted from taxation और यही हुआ भी है. However, if the research is conducted solely for the benefit of private institution, such as for patents or other proprietary purpose, it should be taxed. He recommended that only the scenario where private funding is for institutions' own benefit should be referred to the fitment committee for further consideration. Arunachal Pradesh strongly advocated that all research activities, regardless of their source of funding or end use, should be granted exemption to promote overall development and innovation. Chairperson indicated that the law should be simple and straightforward, reflecting the council's unanimous decision to support research by exempting all forms of research funding from taxation. तो डिसीजन वही हुआ कि चाहे प्राइवेट फंडिंग हो, गवर्नमेंट फंडिंग हो, एवरीथिंग इज एग्जेम्प्ट और ये एग्जेम्प्ट हो गया। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे टैक्स 18% है, ऐसा है क्या? Sir, first year premium rates are different, then onwards, second year onwards rates are different, sir. अच्छा, एक हाँ तो नहीं, तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे एग्जाम्पशन नहीं है तो और स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्सेशन नहीं है तो हम मान के चल रहे हैं कि ये रेसिडुअरी रेट में जाके 18% पे टैक्स। चलिए अब हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे जीएसटी ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, इस पे जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? हम इसमें कुछ जगह कुछ मेंबर्स ये बोल रहे हैं कि health insurance premium is just like making advance payment for your hospital. तो इसीलिए और हॉस्पिटल्स के बिल्स एग्जेम्प्ट है, इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम शुड आल्सो बी एग्जेम्प्ट. तो दे आर डिस्कसिंग वेदर टू एग्जेम्प्ट और नॉट. And they have given 4 options: exempting all individual health insurance premium, exempting individual health insurance premium which are paid by senior citizens, and individual health insurance premium where the coverage is up to rupees 5 lakh irrespective of age. तीसरा option, exempting only those individual health insurance premium which are paid by senior citizens, or reducing the rate of GST on all individual health insurance services to 5% without ITs. Now let us see the discussion. Chhattisgarh highlighted the low penetration of private health insurance, noting that only 5 crore people have private insurance, while 60 crore are covered under the government's Ayushman Bharat scheme, whereas 75 crore individuals are still uninsured. They emphasize that the premium is essentially an advance payment for health services which are exempt, and question the rationale for taxing this. He advocated for reducing GST to 5% with ITC, as without ITC it will complicate the issue and affect the benefit to the middle class. He reiterated that it must be ensured that the benefit of the reduction are passed on to the consumers. अब तो एंटी प्रॉफिटरिंग भी नहीं है, पास होगा नहीं होगा पता नहीं. She raised concerns about the proposal to exempt senior citizens may create unnecessary complications, particularly for family health insurance scheme, where differentiating between senior and non-senior citizens would be difficult. She underscored the importance of health as a constitutional right and urged the council to ensure that the right is effectively exercised by all citizens. She suggested to consider ये जो constitutional right के कारण ही आप देखिएगा इनकम टैक्स में 80D है शायद, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन मिलता है. She suggested to consider supporting a total exemption of GST on health insurance as it is essential for public health. By lowering the GST rate on premiums, more people would be encouraged to purchase health insurance, which would ultimately improve the overall health and productivity of society. He then highlighted the long-term impact of shifting from treatment-based health sector to an insurance-driven one, where preventive medicines becomes a priority.
He stated that an insurance-driven mindset could lead to a greater focus on prevention, benefiting both insurance companies and individuals. He suggested a differential approach for those who can afford higher premiums, but supported the fourth option for policies with a coverage of up to 5. तो अलग-अलग opinion आ रहे हैं. She proposed that a dedicated group of ministers should be constituted to examine the matter thoroughly and provide recommendation. तो decision नहीं लिया गया और ये group of minister के पास चला गया. Anyone? कोई और opinion? चलिए आगे. Fully exempt from GST horticulture services supporting the environmental causes due to their potential role in improving air quality. She stated that at present pure services. अच्छा इसके background बता देता हूँ. ये जो म्युनिसिपैलिटी है और पंचायत इनके सर्विसेज एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है? हेलो, म्युनिसिपैलिटी इज प्रोवाइडिंग आउटवर्ड सर्विसेज, इनके सर्विसेज एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है या नो सप्लाई? प्लीज बताएं. सर नो सप्लाई है, नो सप्लाई. मतलब 243G और W वाले. यस, नो सप्लाई है. मैं किताब निकालता हूँ और इसमें एक सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर 3, सप्लाई ऑफ लेबर सर्विसेज टू गवर्नमेंट. तो प्योर सर्विसेज अगर आप सप्लाई कर रहे हैं टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का ये इनवर्ड सप्लाई है, तो वो एग्जेम्प्ट है या नहीं? तो इसमें जो सप्लायर है वो एनी पर्सन है. किसको सप्लाई कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी या एलए को. किस पर्पस के लिए सप्लाई कर रहा है? पंचायत या म्युनिसिपैलिटी के पर्पस. और अगर Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. ये प्योर लेबर सर्विस है, लेकिन गुड्स के साथ अगर सप्लाई करता है तो वो सीरियल नंबर 3A में आएगा. कहां गया? ये रहा, जहां पर लिखता कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लेबर एंड गुड्स दोनों है, जहां पर गुड्स इज नॉट मोर देन 25%. अब जो हम लोग डिस्कशन पढ़ने वाले हैं उसमें ये कह रहा हॉर्टिकल्चर सर्विसेज. तो दिस पर्सन, एनी पर्सन is selling plants to municipality or local authority, whether it will be exempt or not. और ये गार्डन मेंटेनेंस का काम कर रहा है, पार्क मेंटेनेंस का काम कर रहा है, तो क्या ये exempt होगा या टैक्सेबल होगा? हेलो, बेसिकली हॉर्टिकल्चर सर्विस. तो अब आपको ये देखना होगा ये पंचायत, ये जो हॉर्टिकल्चर सर्विसेज, ये 243G का पार्ट है या नहीं है, 243W का पार्ट है या नहीं है. अगर इसका पार्ट होगा तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नहीं होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा. और जब आप पढ़ेंगे 243G और W, तो आपको यहां पर हमने लिखा हुआ तो है 243W, अर्बन प्लानिंग रेगुलेशन, दिस अर्बन फॉरेस्ट्री वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन आपको मिलेगा नहीं ये हॉर्टिकल्चर सर्विस. और ये 243G एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, लैंड, एनिमल, फिशरी वगैरह 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 लिखा हुआ है, इसमें भी नहीं. लेट अस रीड इट. शी stated that at present pure services and composite supply of goods and services in which the value of goods constitute not more than 25% of the total value of supply in relation to any function entrusted to municipality are exempted. Delhi suggested that on behalf of Delhi PWD that giving exemption to horticulture services is important as a lot of agencies are involved in this sector. Since there are high GST rates and given the fact that Delhi faces high pollution level also, this exemption can be given for a certain period of time. Accordingly, she suggested that a time-bound exemption can be considered in this regard, as this will push more service providers to get registered under GST. This exemption covers all kind of pure services or composite supply goods and services, including horticulture. तो इन्होंने डिसीजन लिया कि exemption नॉट टू गिव. ये हमने किताब में लिखा है, बस देख लेता हूँ कहीं. अच्छा, यहाँ हॉर्टिकल्चर का सर्कुलर भी है ऑन फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज. एमसीडी इज रिसीविंग सर्विसेज सच एज हाउसकीपिंग, दिस हॉर्टिकल्चर फ्रॉम फैसिलिटी मैनेजर टू अपकीप देयर ऑफिस. जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द सर्विसेज. ठीक है, टैक्सेबल कर. और ये अब हमने एजेंडा आइटम भी चलिए बाद में सेटिंग कर. अच्छा, एक बात बताइए, बसेस की सर्विसेज टैक्सेबल है या नहीं? रेड बस लिखता हूँ. बस का कोई लीगल नेम क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट. नहीं, बस को बस नहीं कह रहे हैं, ये ओमनी कह रहे हैं. क्या ओमनी? वो सिर्फ 5% चार्ज करते हैं रेड बस वाले. कितना चार्ज करते हैं? 5%. 5% स्टेज कैरेज बोल. और अगर ये नॉन एसी बस है तो ओमनी को मिनी बस भी बोलते हैं सर. मिनी बस. ये देखिए, मिली तो हम लोग यही तो थे. देखिए जो रेट आप देखेंगे सीरियल नंबर
16 ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर, बस, रेडियो और टैक्सी। और यहाँ पर स्टेज कैरेज पेइंग फॉर अ सीट इन ए व्हीकल बस अदर देन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज यानी कि नॉन एसी नील है एग्जाम्प्ट। इसका एक एक्सेप्शन बनाया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन आइटम बी एंड सी, ये वाला non air conditioned contract carriage or stage carriage shall apply to services supplied through an electronic commerce operator and notified under 55 और 95। यानी कि अगर आप रेड बस के थ्रू या किसी और ऐप के थ्रू अगर आप ये बसेस का टूर बुक करते हैं तो 5% जीएसटी, बसेस से डायरेक्ट टिकट बुक करते हैं तो जीएसटी नहीं लग रहा है। सोच के देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है जीएसटी। तो प्रेजेंटेड द नेक्स्ट एजेंडा आइटम रिलेटिंग टू रिकंसीडर 5% जीएसटी एप्लीकेबल ऑन all bus bookings through e-commerce platform. Currently, passenger transportation services supplied by non-AC contract stage carriage are exempt from GST. However, 5% GST is applicable on online booking done through e-commerce platform and not applicable if the same booking is made physically in cash at bus counter or if the booking is made directly from the bus operator's website। ये आया कब था? प्रोवाइजो 2 नंबर 1 जनवरी 2022। She stated that supply of any service through e-commerce operator is a distinct category of supply as compared to the service being supplied by individual service providers. So Fitment committee has recommended that the request may not be accepted। बस मुझे इसी पे पॉइंट डिस्कस करना है, व्हाई इट इज ए डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ सप्लाई। अब मान लीजिए कस्टमर है वो बस की वेबसाइट में जाके मान लीजिए श्याम.com में जाके एक टिकट बुक करता है तो उसको 100+0 देने पड़ते हैं बिकॉज इट इज ए नॉन एसी। लेकिन रेड बस के थ्रू करता है तो इसको 105 रुपए देने पड़ते हैं 100+5। व्हाई इट इज ए डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ सप्लाई? क्यों मान रहे हैं इसको डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ? मुझे तो लग रहा है कि बोथ आर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, व्हाई दे आर राइटिंग इट इज ए डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ सप्लाई? Sir, because they're taking services from third party vendor. Redbus is a third party for them. That Sham is their own inbuilt website. Redbus will be a third party, no? So it will consider service. So they're considering it as taking service from a third party for that online booking services. Okay, correct. I agree. So Redbus should pay GST only on commission amount. Why they are paying? ये 100 रुपया यहाँ भी है, 100 रुपया यहाँ भी। Why you are levying tax on 100 rupees? Levy only on that commission amount. Distinct category कैसे हो जाएगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। Anyone else? ये रीजनिंग डेवलप कर लेंगे तो हम लोग और अच्छे से रिप्लाई ये सब देना बहुत आसान होगा, क्योंकि ये कहाँ काम आएगा वी डोंट नो, इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। काम करते हैं, इसका एजेंडा आइटम में चलते देखते कुछ लिखा हुआ है। स्टेज कैरेज लिखो ना, ये बहुत है, कैरेज ही लिखता हूँ, 10 जगह ये रहा। टू रिकंसिडर 5% जीएसटी एप्लीकेबल ऑन ऑल दिस 1 जनवरी। डिटेल्स ऑफ रिक्वेस्ट का डिटेलिंग पढ़ लेते। 5% GST applicable only on online booking done through e-commerce platform and not applicable to the same booking with this. This is creating a disadvantage for bus operators providing service through e-commerce platform. To remove distortion in booking done through offline versus online channel and to ensure a level playing field to small service providers who use e-commerce platform for getting market visibility, the application of 5% GST on online bookings may be reconsidered। तो 45th GST काउंसिल में पता लगेगा कि why they have, जब 45th GST काउंसिल में they introduce 5% GST तो उन्होंने ये रीजनिंग तो जरूर ली होगी कि सिंस इट इज ए डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस लेटेस्ट टैक्स डेट 45th तो देखते हैं फिर मिल क्यों नहीं रहा, क्या चक्कर है? अच्छा वेबसाइट में या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, क्या चक्कर है? गलत लिख दिया क्या उन्होंने? 45th में तो है ही नहीं। चलिए फिर आगे बढ़, कोई किसी को कोई भी आइडिया हो तो बता दीजिए प्लीज कि व्हाई दे आर ट्रीटिंग दिस एज ए सेपरेट कैटेगरी, डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ सप्लाई। चलिए आगे। सर वो तो नॉन एसी पर भी 5 लगा रहा है, क्या चीज? रेड बस वाला हाँ हाँ नॉन एसी बस की बुकिंग पर भी 5% चार्ज कर रहा है। हाँ, तो वही तो है कि वैसे आप नॉन एसी में डायरेक्ट बुकिंग करेंगे तो एग्जेम्प्ट है और रेड बस के थ्रू करेंगे तो टैक्स है। इसी डिस्टॉर्शन को खत्म करने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, माना नहीं। और माना क्यों नहीं? क्या बोल रहा है रीजन? इट इज ए डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ सप्लाई। Now, why it is a distinct category of supply? उसका रीजन ही नहीं समझ में आ रहा है। She stated that supply of any service through electronic commerce of platforms is a distinct category of supply. Next agenda item relating to clarifying that the delivery services provided by delivery partners. Oh, ये भी अभी ये ढूंढ doubt है. हाँ So, this Redbus is a platform, but whereas some other big bus operators are there like VRL,
who have their own website. For them, it is not applicable. नो दे आर एग्जेप्ट नॉन एज। अच्छा देखिए अब क्या टैक्स करना चाह रहे हैं यहाँ। ब्लिंकिट ने डिलीवरी पार्टनर्स हायर किए हुए हैं। ये डिलीवरी पार्टनर्स ब्लिंकिट के एम्प्लॉइज है या कॉन्ट्रैक्ट पे हैं? हेलो, कमीशन ही मिलता है या इनको एम्प्लॉइज हैं? ये एम्प्लॉइज हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर ये General- कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट पे ही होते हैं जनरली। ओके, तो एक बार पता कीजिए अरे क्या है ये। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट के सर। हैं, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो ये इनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ब्लिंकिट इनको पैसे दे रहा है कंसिडरेशन, तो क्या ये इसके ऊपर, इस ट्रांजेक्शन के ऊपर जीएसटी लगेगा? तो देखिए ऐसा तो नहीं लगेगा क्योंकि इनका 20 लाख से ऊपर है ही नहीं प्रेजेंटेड। अब 20 लाख से ऊपर नहीं है तो फिर कैसे करेंगे टैक्स इसको? हेलो, ये 20 लाख से ऊपर नहीं है तो टैक्स कैसे करेंगे इसको, इस ट्रांजेक्शन को? अरे बता दीजिए आरसीएम, बड़ा आसान है। प्रेजेंटेड द नेक्स्ट एजेंडा आइटम रिलेटिंग टू क्लैरिफाइंग दैट डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिलीवरी पार्टनर्स थ्रू द ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स आर नॉट टैक्सेबल ड्यू टू प्रोवाइडर्स बीइंग बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ ₹20 lakh or to bring delivery service made in respect of those supply made through e-commerce operator under section 9(5) with prospective effect, and these delivery services may be taxed at 5%. She informed that during the deliberations on the said issue in the officers meeting held on this, it has been recommended to defer the issue for comprehensive exam. ये लोग इतना टैक्स लगाएंगे कि बिजनेस ही नहीं कर पाएगा बेचारा। ई कॉमर्स ऑपरेटर खोलने से पहले वो 5 बार सोचेगा कि टैक्स कंप्लायंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जिस दिन आएगा उस दिन आधे से लोगों को ज्यादा पता नहीं लगेगा तो और दिक्कत। प्रेजेंटेड द नेक्स्ट एजेंडा आइटम रिलेटिंग टू क्लैरिफाई दैट प्रायर टू 1 October 2021 जीएसटी at the rate of 5%. ओके, दिखलाता हूँ आपको कहानी। ये 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स, एजेंडा आइटम टैक्सेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक सरप्लस अर्न्ड बाय ब्रांड ओनर्स ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये पूरा इसमें डिस्कस किया हुआ है, और ये एक ड्राफ्ट सर्कुलर था जो वो लेके भी आना चाह रहे थे लेकिन लेके नहीं आए। अब ये इशू क्या मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यूबी, यूनाइटेड ब्रूअरीज, किंगफिशर बियर बनाती है और इन्होंने एक फैक्ट्री को जॉब वर्क में दे दिया। फैक्ट्री क्या करता है, इसके बिहाफ पे बियर बनाता है और इनका ब्रांड लगा के फिर इनको सप्लाई कर देता है। करेक्ट है? तो ये बेसिकली जॉब वर्क कर रहा है, ये मटेरियल दे रहा है या कुछ दे रहा है और ये ब्रांड लगा के इनको बेच दे रहा है। क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? सर लगना तो नहीं चाहिए। मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो आप ये सोच के देखिए 35th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये पूरा डिस्कस हुआ है। कितने सारे डाउट्स थे, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। रुक जाइए मैं पढ़ूं। ये देखिए, द ऑनरेबल फाइनेंशियल पंजाब had also alluded to the same in his remarks while discussing the job work service with respect to contract manufacturing of alcoholic liquor for human consumption. Various business models being followed in the industry for manufacturing of alcoholic beverage for human consumption is presented below. The transfer of right to manufacture for commercially exploiting brand of the brand owner in exchange for a consideration franchisee fee. Contract manufacturing by CBUs कुछ होगा, हाँ, contract bottling units without any transfer of right to CBUs to commercially exploit the brand of brand owner. तो ये बहुत सारे थे, इसमें बहुत सारा डिस्कशन हुआ। अब यहाँ आ गए हम लोग। अच्छा एक बात बताइए, इसका मतलब इसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? आज हम लोग 2025 में है। जॉब वर्क फॉर अल्कोहल, मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? इज इट ए सेटल्ड इश्यू या फिर इस पहले से ही पता था इस पे जीएसटी लगना चाहिए? 35th जीएसटी काउंसिल मीटिंग को देख के नहीं लग रहा है कि एवरीवन वाज कंफ्यूज। 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स को। अब 54th में देखिए ये क्या डिस्कशन कर रहे हैं। 54th में ये डिस्कशन कर रहे हैं टू क्लैरिफाइंग दैट प्रायर टू 1 October 2021 जीएसटी एट द रेट ऑफ 5% पेड ऑन जॉब वर्क एक्टिविटीज अल्कोहलिक बेवरेज बी ट्रीटेड एज जीएसटी फुल्ली पेड एंड नो रिकवरी ऑफ डिफरेंशियल टैक्स ओवर एंड अबव 5% शुड अराइज। तो लगेगा, लेकिन 5% लगेगा या 18% लगेगा? शी स्टेटेड दैट फिटमेंट कमिटी हैज रिकमेंडेड दैट द रिक्वेस्ट मे नॉट बी एक्सेप्टेड as there is no ambiguity in the provisions of the law related to the taxability of job work activities qua alcoholic beverages. The same was also agreed in the officers meeting on 8 September 2024. आप सोच के देखिए, मुझे तो लग रहा है कंफ्यूजन शुरू से है। अब मैं क्या करता हूं, इसका अल्कोहलिक बेवरेजेस का देखते हैं इसमें और क्या डिस्कशन। ठीक ही नहीं है, कौन सा खुल गया? 54 ही है ना, 578 पेज। जॉब वर्क ये है। To issue circular clarifying this, the issue of taxability of subject service was addressed in 45th GST। ठीक है, ये बात तो ठीक है। इन्होंने एक एंट्री डाली थी जॉब वर्क की, कौन सी जॉब वर्क की,
कहाँ गया वो एंट्री 26 ICA को मैं आपको दिखला सकता हूँ। ये सर्विसेज बाय वे ऑफ जॉब वर्क इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इन्होंने ये एंट्री डाल के ये तो क्लियर कर दिया था कि 9% है, लेकिन टैक्सेबिलिटी होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इस पे क्लैरिटी आज भी नहीं। खैर आज के लिए यहीं रुकते हैं, उम्मीद है आप लोग बोर नहीं हो रहे। बिल्कुल नहीं सर, चलिए एकदम डीप में जा रहे हैं ना सर, इसके लिए। थोड़ा तो इस पे बारे में सर इंटरेस्टेड है, मोर कैसे होंगे सर? हाँ हाँ ठीक बात। मतलब ये जो जॉब वर्क का मैंने अभी आपको दिखलाया कि टैक्सेबिलिटी भी होगी या नहीं होगी ये एक बहुत बड़ा डाउट है, लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि टैक्सेबिलिटी तो आएगी आएगी, इसीलिए 9% के लिए उन्होंने एक अलग एंट्री ही बना। हम लोग करेंगे रेट ऑफ टैक्स का, जब वो किताब पढ़ेंगे पूरा तो और डिटेल में करेंगे। चलिए कंक्लूड करें, कल एक बार और मिलता है, कल आखिरी होगा और 54 खत्म हो जाएगा। थैंक यू मुकेश। सर हाँ सर कुछ एक क्वेरीज थी सर। पूछिए। सर एक ऑडिट आया है सेक्शन 65 में, और उसको उन्होंने एडवर्स ऑर्डर भी कर दिया है, और उसी सेम CGST से हमारे पास एक DRC 01 भी आया था, और उसको भी उन्होंने एडवर्स ऑर्डर DRC 07 में कर दिया है। तो जब मेरा 5 साल का ऑलरेडी एक ऑडिट आया हुआ है, तो क्या DRC 07 कर सकते हैं वो उसको 20-21 के ईयर में? ऑडिट ADT 02 आ चुका है। जी हो चुका सर, ऑडिट का एडवर्स ऑर्डर भी पास कर दिया है, और उसी सेम ईयर का मेरे पास एक नोटिस भी आया था SMT 10 DRC 01 फॉलोड बाय DRC 07। आपने बताया नहीं कि ऑडिट ऑलरेडी चल रहा है, ये सारे ग्राउंड्स जो सर हमारे पास सर वो कल ही मिलने आए हैं, और ये सारा कुछ हो चुका है। अब चूंकि मैं सर कल गया भी था मिलने वहां पर, तो वो ये कह रहे हैं कि अब तो इसका एडवर्स ऑर्डर हो चुका है, अब इसको आपको इलाहाबाद ही जाना पड़ेगा। नहीं मुझे एक बात बताइए कि DRC 0 आपके पास, इसका मतलब 2 DRC 07 है? हाँ बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल है सर, 2 हैं। तो दोनों में ग्राउंड सेम है क्या? सर एक्चुअली में जो ऑडिट में उन्होंने मांगे थे पेपर, ऑडिट में तो उन्होंने कुछ प्रोवाइड ही नहीं कराया, तो उन्होंने अपने हिसाब से वो इनपुट्स के डिफरेंसेस और जो उनको लगाना था वो उन्होंने लगा के दे। राहुल जी आप एक बार राहुल जी एक मिनट, DRC 07 दोनों देखिए, मान लीजिए दोनों में 2A वर्सेस 3B है क्या? दोनों में सर है भी है तो एक ड्रॉप होगा। नहीं, दोनों सर ऑर्डर हो चुके हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि अब आपको जाके अपील से ही इसको कराना पड़ेगा 10% ऑफ टैक्स डिपॉजिट कर। रेक्टिफिकेशन फाइल कीजिए। अब सर वो कह रहे हैं कि हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे। मैं काफी कहा भी है इम्पोर्टेंट ये कह रहे। राहुल जी आप हमारी बात सुनिए, आपने तो जो करना था कर लिया ना, आप हमारी बात सुनिए। रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन पहले आप पोर्टल पे डालिए, उसके बाद मिलने जाइए। अगर वो वर्बली कह रहे हैं तो आप पूरा बनाइए उसको, और फिर नहीं होता है देन यू गो फॉर अपील ऑल्सो। मुकेश जी आपके पास कोई आइडिया इसके बारे में? सर मैं समझ नहीं पाया है क्या इशू है। मुकेश जी इन्होंने क्या क्या ऑडिट भी हुआ और फिर DRC अलग से SMT 10 हो गया, फिर DRC 1 हो गया, DRC 7 हो गया, अब इनके पास 2 DRC 07 है सेम इशू पे। हाँ ADT 02 के बाद भी DRC 07 है और अलग से भी है, और दोनों में मान लीजिए ग्राउंड सेम है, और ये कह भी रहे हैं ग्राउंड सेम है। पीरियड अलग है सर ऑडिट होता है 5 साल का, और एक बीच के साल का 20-21 का हमारे पास DRC 01 आया था केस का। राहुल जी दूसरे वो जवाब दीजिए ना, पीरियड भी सेम है क्या? जी हाँ पीरियड भी सेम है सर, और तो वो तो ड्रॉप, ग्राउंड भी सेम है सर वो तो ड्रॉप हो जाएगा, एडजुडिकेशन में ड्रॉप हो जाएगा। नहीं ये रेक्टिफिकेशन में ड्रॉप होगा या नहीं होगा? रेक्टिफिकेशन तो नहीं ड्रॉप होगा सर, जाना पड़ेगा इनको। रेक्टिफिकेशन क्यों नहीं करेंगे? ये नॉर्मली कमिश्नर करते हैं, वो अब कितना इंटरेस्ट, ये सेंट्रल का है कि स्टेट का है? सेंट्रल का है सर। हाँ तो इसमें कमिश्नर करते हैं, अप्लाई करिए एक बार देखिए। हाँ मैंने सर उनको ये बात बोली थी, तो वो ये कह रहे थे कि हम लोग चूंकि अपनी जो रिकमेंडेशन होती है उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, उसके बाद ये हमारी पावर में ही नहीं रहता, ये अपील से ही छूटता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप डायरेक्ट कमिश्नर से मिलिए, नीचे वाले ऑफिसर से मिलिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है सर। चलिए ठीक है फिर कंक्लूड करते हैं। सर महेश बोल रहा हूँ सर। हाँ महेश जी। सर हमारे ग्रुप में कोई ऐसा मेंबर है जिसने ITC का इंटरहेड एडजस्टमेंट का बेनिफिट एपिलेट अथॉरिटी लेवल पे लिया हो किसी केस में? I की जगह C+S C+। हाँ मेरा एक प्रेजेंट केस है, कल नोएडा में था, तो DC कह रहे हैं कि हम तो देंगे ही नहीं, नोएडा में डिसाइडेड है, हम सब ने डिसाइड कर रखा है। अगर मैंने उन्हें कलकत्ता और केरला हाई कोर्ट के 2 जजमेंट दिए, कहते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का दे दो मुझे, मैं अलाउ कर दूंगा, इलाहाबाद के अलावा नहीं मानेंगे। तो मैंने उनको ये भी कहा कि सर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या डिनाई किया है इसके लिए? अगर डिनाई किया हो या किसी और कोर्ट ने डिनाई किया हो तब तो जायज है, तो हाई कोर्ट
कोर्ट का तो एप्लीकेबल होना चाहिए। नहीं तो दूसरे क्या हाई कोर्ट का नहीं मान रहे हैं तो वो उनका राइट है नहीं मानना। अच्छा, लेकिन सर मेरे केस में ही मैंने खुद ही एक बेनिफिट लिया है, बट उसमें थोड़ी सी दिक्कत है एपीलेट अथॉरिटी पे यही। अच्छा हाँ, इन दो जजमेंट को कोट करके ही दिया है एपीलेट अथॉरिटी ने, बट उसने अपने जजमेंट में ये दोनों केरला हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट को कोट नहीं किया है एपीलेट अथॉरिटी ने, वो लेकिन बेनिफिट दे दिया। बेनिफिट दिया है। और उसमें एक ये हुआ था कि सामने वाली पार्टी ने हमें आईजीएसटी लगा के दे दिया था, जबकि सीजी और एसजी होना चाहिए था। हमने आईजीएसटी क्लेम कर लिया, तो 2A और 3B में डिफरेंस आया, उसका बेनिफिट उन्होंने दे दिया हमें। ओके सर ऐसा ही केस मेरे पास आरसीएम में नजर आ रहा था इनपुट में, मतलब मेरा नजर आ रहा था आईजीएसटी हेड में मुझे पेबल करना चाहिए था और मैंने अपनी बुक्स में सी और एसजीएसटी पेड कर रखा था। नहीं, तो अभी जब मैंने अपने राहुल जी आपका केस अलग है। तो वो तो आउटवर्ड सर मैंने फिर उसका रिफंड ले लिया है और वो वाला पेड कर दिया। हाँ ये आपका केस ही अलग है, ये जो महेश जी बोल रहे हैं वो केस अलग है। और वो इनपुट का है या आरसीएम का था, आरसीएम मुझे पेड करना था उसमें। सर हो सकता है वैसे अगर ये कहें सर। राहुल जी अपना बैकग्राउंड बताइए तो एक बार। सर मैं केवल एक अकाउंटेंट और बल्कि मेरा एलएलबी है सर, मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ जीएसटी सीखने की। आपने यूट्यूब में हमारा वो ज्वाइनिंग वाला बटन ज्वाइन किया? हाँ अभी किया है सर, लेटेस्ट पेड वाला। कल ही मैंने उसको जी पेड वाला। सर अभी तक दूसरा प्लान मैंने लिया हुआ था 159 वाला, अभी मेरा कल वो स्विच खत्म हो गया है तो आज मैं वो 599 वाला लूंगा। ठीक है उसको देखिए आप, तब जाके और क्लैरिटी आएगी। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो आपको समझ में आएगा फिर बहुत अच्छे से। ठीक है राजेश जी है सर, आज नहीं है। राजेश सर नहीं है आज। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level.